ناظرین آداب، اردو دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں سید احمد جیلانی. ناظرین، این سی پی ایل کی موبائل وین کو مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد میں اچھا رسپانس مل رہا ہے. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی موبائل وین 21 تا 24 مئی کے دوران اورنگ آباد شہر میں مقیم رہی. ابتدا میں تو شہریان اورنگ آباد کی توجہ اس وین کی طرف نہیں گئی، لیکن ای ٹی وی پر خبر چلنے اور مقامی اخبارات میں کوریج کا مثبت نتیجہ نکلا اور خریداروں کا ہجوم بڑھنے لگا. یہاں پر جو ہے تو یہ مختصر سا میلہ لگایا گیا ہے اور کافی کتابیں ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کا اختتام بہت اچھے طریقے سے ہوگا. لوگ زیادہ سے زیادہ کتابیں خریدیں گے. قومی اردو کونسل کی کتابیں اتنی اچھی ہے، خاص طور سے طلباء کے لیے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو یعنی ادبی ذوق رکھتے ہیں، شاعری کا ذوق رکھتے ہیں. قومی کونسل کتابیں ویسی کتابیں شائع کرتی ہے. قومی کونسل کتابوں کی قیمتیں بہت کم ہوتی ہے، جو آدمی کے جیب کے مطابق ہوتی ہے. این سی پی ایل کی موبائل وین کی اورنگ آباد آمد ریسرچ اسکالرز کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. یہی وجہ ہے کہ موبائل وین میں ریسرچ اسکالرز نے بڑے پیمانے پر خریداری کی. بچوں میں کتابوں کا پڑھنے کا، مطالعے کا شوق پڑھانے کے لیے جو ہے تو ایک بار پھر ان کو اگست سپٹمبر میں یہاں پر یہ وین کو بھیجا جائے، اسی ہماری قومی کونسل برائے فروغ اردو سے گزارش. مجھے کئی دکانوں پر جا کر ڈھونڈنے پر بھی نہیں مل پاتی، جیسے کہ تاریخ نثر اردو نمونہ منصورات. یہ کتاب بڑی مشکل سے ملتی ہے اور الحمدللہ مجھے اس موبائل وین میں مل گئی ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں قومی کونسل کا کہ وہ ہمارے علاقے میں اس طریقے کی کتابوں کا مہیا کرنے کا ذریعہ پیدا کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم جیسے ریسرچ اسٹوڈنٹس، ریسرچ اسکالرس کو بڑی مدد ملتی ہے. اس موبائل وین میں 1100 سے زائد مختلف موضوعات پر تقریباً 10,000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، جن میں اردو ادیبات، نعت، ڈکشنریاں، انسائکلوپیڈیا، تاریخ، معاشیات، سائنس و ٹیکنالوجی اور جدید علوم کے ساتھ بچوں کا ادب اور مختلف ریاستوں سے شائع ہونے والی اردو کی کتابوں کا ذخیرہ ہے. ایسے میں یونیورسٹی کے پروفیسر، اسکولی اساتذہ، اردو کے ادیب و دانشور طبقے نے بھی اس وین سے اپنی استطاعت کے مطابق استفادہ کیا. دانشور طبقے نے این سی پی ایل کے اس اقدام کی خوب ستائش کی ہے. اس چلتے پھرتے کتابوں کے خزانے میں بچوں کے لیے اخلاقی درس پر مبنی اور بچوں کی ذہن سازی کرنے والی کئی کارآمد کتابیں موجود تھیں. بچوں کو یہاں سے بہت اچھی اچھی کتابیں لینی چاہیے اور پڑھنی چاہیے کتابیں، اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اس وین کی وجہ سے ہم کو بہت سارے اردو کی کتابیں ملی ہیں. کتابوں کے اس کارواں کا اگلا پڑاؤ جالنا ضلع ہے، جو اورنگ آباد شہر سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس طرح این سی پی ایل کی اردو کتابوں کی یہ وین مہاراشٹر کے مختلف اضلاع کا دورہ کر کے 5 جون کے بعد کسی دوسری منزل کی جانب روانہ ہو جائے گی. ای ٹی وی نیوز، اورنگ آباد. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. یہ معروف شعر حکیم مومن خان مومن کا ہے. اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ یہ باہم گفتگو کے انداز میں ہے. مومن کے کہنے کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہونے کو تو دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا،
लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो ये कि उनका महबूब उनका ना हो सका। इस शेर में सारा जोर किसी तरह पर है। मोमिन ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने महबूब को पाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन सब कुछ बेकार रहा और महबूब किसी तरह भी उनका ना हुआ। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का। हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का। हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। अलकमा शिबली निगार शेर अदब की शानाकशी में मसरूफ़ हैं। अपने लंबे अदबी सफ़र में इन्होंने मुख्तलिफ मुतनव्वो असनाफ़ सुख़न पर तबाज़माई की है। तुम वो पत्थर हो जिसे पूजने आई दुनिया, मैं हूँ वो रेख जिसे नक्शे कफे पा न मिला। जिंदगी एक किताब खस्ता है, इसको चिबली संभाल कर पढ़ी। जिंदगी एक किताब खस्ता है, इसको चिबली संभाल कर पढ़ी। आज के टूटते लम्हों की है धड़कन जिसमें, असर नौ का वो सुलगता हुआ लहजा हूँ मैं। अलकमा शिबली ने मजहबी घराने में आंखें खोली। वालिद, चचा और खालू सब आलिम दीन थे, लिहाजा किताबों की जानिब उनका दिल खिंचा चला आया। अलकमा शिबली बचपन में खामोश तबा थे और खेल कूद में उनका जी नहीं लगता था। उर्दू, फारसी और अरबी की इब्तिदाई तालीम मकतब में हासिल की। वालिद के साए शफ़क़त में उनकी तालीम और तरबियत हुई। वालिद आलिम दीन थे, उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर क़याम करना पड़ता था। शिबली भी उन्हीं के साथ रहते। मैट्रिक और बीकॉम दरभंगा से किया। उस जमाने की रविश के मुताबिक शिबली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे। बीकॉम करने के बाद शिबली दरभंगा से उस वक्त कलकत्ता चले आए, जो कोलकाता के नाम से जाना जाता है। यहीं से उनके शेरी ज़ौक़ को पर लगे। मैं तालीम हासिल करते रहे, फिर वहाँ से कुछ दिनों हम इलाहाबाद चले गए। हमारे खालू वहाँ रहा करते थे, उनके साथ मैं रहा, वहाँ पढ़ता रहा। हमने
बाज़ाब्ते लिखना शुरू किया 1945 से। उससे पहले भी लिखते रहे लेकिन बाज़ाब्ता नहीं। पहली मुकम्मल गज़ल हमने 1945 में, अब वो भी इसलिए कि दरभंगे में उस वक्त एक मुशायरा था, उस मुशायरे में पढ़ना था, उस पढ़ने के लिए हमने गज़ल लिखी और उसके बाद से वो सिलसिला शुरू हुआ। शिबली को लड़कपन से लिखने का शौक था। उन्होंने पहली गज़ल 1948 में एक तरही मुशायरे के लिए कही थी। मुशायरे में मिली दादो तहसीन और पजीराई से शिबली का हौसला बढ़ा और फिर लिखने का सिलसिला चल पड़ा। मुल्क के मुख्तलिफ रसाइल और जराइद में उनके कलाम की इशाअत भी होने लगी। कलाम की इशाअत से उनका शौक परवान चढ़ा। मेरी तख्लीक़ात में जहाँ तक क्लासिकल असर भी है और उसके बाद मौजूदा ज़माने के जो तग़य्युरात थे उनकी झलकियाँ भी आपको उसमें मिलेंगी, लेकिन उन झलकियों में हमने यूँ समझिए कि क्या कहिए उसको, बहुत ही खुल कर कोई बात कही नहीं है। इसलिए मैं गज़ल की तरफ ज़्यादा मायल था। गज़ल में बातें खुलकर नहीं कही जाती लेकिन सारी बातें कर दी जाती हैं और उसका असर भी होता है। चुनांचे मैं गज़ल ही कहता रहा, बाद में नज़में भी मैंने कही, क्योंकि नज़मों की भी ज़रूरत थी, इसलिए उसकी तरफ भी मैं मुतवज्जह हूँ। शिबली के शेरी सफ़र की इब्तिदा गज़ल गोई से हुई। वो नया रंग व आहंग और लबो लहजा लेकर आए जिसे अदबी महफिलों में खूब पसंद किया गया। गज़ल गोई के साथ साथ अलक़मा शिबली ने नज़्म निगारी की। उन्होंने पाबंद और आज़ाद दोनों असनाफ में तबा आजमाई की और अपने तजुर्बात व मुशाहदात, जज्बात व एहसासात को शेरी क़ालिब में ढाला। उन्होंने तहनीती नज़में और सेहरे भी कहे। रुबाई मुश्किल तरीन और नाजुक फ़न है, इसमें भी अलक़मा शिबली को कमाल दस्तरस है। रुबाई जिसका मौजू ईमानियात, अखलाकियात और नसाहे हुआ करते थे, अलक़मा शिबली ने इसके मज़ामीन को वुसअत दी। हमदुनात की रुबाइयों पर उनका मजमुआ ज़ाद सफ़र का तज़किरा यहाँ ज़रूरी है। ये गालिबन अपनी नौइयत का पहला मजमुआ है जो हमदिया व नातिया रुबाइयों पर मुश्तमिल है। शिबली के कई मजमुए मंजर आम पर आकर क़ारीन से दादो तहसीन वसूल कर चुके हैं। हर्फ व सौत, बेचेहरा लम्हे, ख्वाब ख्वाब जिंदगी और धूप धूप सफ़र उर्दू अदब में नुमाया इजाफा है। 70 की दहाई के बाद अदबी महफिलों में शिबली पूरे आबताब से चमके। अपने हमअसरों से शिबली को उनकी सादगी, सादा बयानी, दिलकश उसलूब इलाहदा करती है। मैंने देखा कि उर्दू में बच्चों के लिए खुसूसन कुछ नहीं लिखा गया है, और अगर लिखा भी गया है तो सिर्फ मुंह का मज़ा बदलने के लिए। तुरंत मैंने इसकी तरफ तवज्जो दी और बच्चों के अदब की तरफ मेरा रुझान हुआ और मैंने बहुत सी नज़में लिखी, बहुत सी मजमूए मेरे बच्चों की नज़मों के सिलसिले में, जिसे लोगों ने पसंद भी किया। जो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकती थी, उनके खेल कूद के सिलसिले में, उनके अब जैसे नज़म मिली चंदा मामा, तो चंदा मामा में हमने चंदा मामा का जिक्र किया है, उसमें एक बुढ़िया का जिक्र किया है जिसको बड़े शौक से लड़के पढ़ा करते थे, आज भी पढ़ते हैं। अलक़मा शिबली ने 5 मिसरों की नज़में भी कसरत से लिखी हैं। उन्होंने इसे बहुस्न खूबी पढ़ता है। पहला और 5वां मिसरा हम काफिया और रदीफ में हो। बहर की कोई क़ैद नहीं, किसी भी बहर में लिखी जा सकती है। अगर शिबली को खमासी का मुजीद कहा जाए तो मुबालगा न होगा। उनकी खमासियों को अहले अदब ने बनज़र तहसीन देखा है। सामने है आज कैसा मरहला, मुर्तइश है आरज़ुओं का नगर, इन्हदाम आमादा है दीवारों दर, हर कदम पर जिंदगी है नोहागर, ख़िमाए अनफास में है ज़लज़ला। अलक़मा शिबली ने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लिखा है। सादी शिराजी की मशहूर मंजूम किताब बोस्तान की कुछ कहानियों की बाज़ नवेसी भी आम फहम नस्र में की, जिसे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान ने बोस्तान की कहानियाँ के नाम से 1985 में शाये किया। पीराना साली के सबब अलक़मा शिबली अब पहले की तरह सरगर्म अमल नहीं है, लेकिन उनका तख्लीक़ी ज़हन मुतहर्रिक है। अलक़मा शिबली की क़लमी विरासत उनके फ़र्जंदान आगे बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, 8वीं सदी ईस्वी के मुमताज़ साइंसदान जाबिर बिन हयान के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। इल्म कीमिया को जदीद उसूलों पर इन्होंने इस्तवार किया।
जाबिर बिन हय्यान जदीद इल्म कीमिया के बाबाए आदम हैं। कीमिया उनके वज़ा करदा उसूलों का मशहूर ममनून है। जाबिर बिन हय्यान पहले साइंसदां हैं जिन्होंने तजुर्बात को अहमियत दी और उसूल कायदे मुरतब किए। जाबिर हय्यान के मुताबिक कीमिया का अगर कोई सही इल्म हासिल करना चाहता है तो उसके लिए तजुर्बात लाजिम है। तजुर्बा ही मुस्लिम और यूनानी साइंसदानों में बुनियादी फर्क है। मुस्लिम साइंसदानों ने तजुर्बे को लाजिम करार दिया, जबकि यूनानी साइंसदान कयास पर तकिया करते थे। जाबिर बिन हय्यान ने सब्लिमेशन यानी दवाओं को मुअस्सिर और महफूज बनाने का तरीका वज़े किया। डिस्टिलेशन की इजाद से अर्क कशीद किए। क्रिस्टलाइजेशन के जरिए दवाओं को क्रिस्टलाइज यानी कलमाया। जाबिर बिन हय्यान ने ही दुनिया को पहली बार अल्कोहल शोरे के तेजाब यानी नाइट्रिक एसिड, नमक के तेजाब यानी क्लोरिक एसिड और फास्फोरस से रोशनास करवाया। 2 अमली दरियाफ्तें नकलीस यानी कश्ता करना यानी ऑक्साइड बनाना, तहलील करना यानी हल करना दुनिया को सिखाया। अमरीकी प्रोफेसर फिलिप ने एतराफ किया है कि इस हकीम और अजीम दानिशवर ने कई चीजें दरियाफ्त की और असली कीमिया की बुनियाद रखी। जाबिर बिन हय्यान के वालिद दवासाज थे। शायद यही वजह है कि उनकी इल्म कीमिया की जानिब मुतवज्जे हुई। जाबिर बिन हय्यान की तसानीफ में अलकीमिया के नजरिए और अमल को नुमाया मौजू की हैसियत हासिल है, लेकिन फलसफा, नजूम, तिलिस्म, रियाजी, मौसीकी, माबाद तबीयात, इल्म कायनात और दीनियात का जिक्र भी उनकी किताबों में शामिल है। उन्होंने अपनी तसनीफ में तिब, ज़राअत और टेक्नोलॉजी पर भी रोशनी डाली है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का। हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान। हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के, अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से। कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का। हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान। हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के, अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से। कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। जुनूब की रियासत तमिलनाडु में कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के सेंटर कई एक तलबा के लिए उर्दू और अरबी सीखने का अहम जरिया बन चुके हैं। मिलविशारम में मौजूद एक सेंटर में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तलबा उर्दू और अरबी ज़बान सीख रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के मेल विशारम में
واقع سی عبدالحکیم کالج گزشتہ 50 سالوں سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ سال 2005 میں کالج کی انتظامیہ نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا مرکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اردو بولنے والے اردو پڑھنا اور لکھنا بھی سیکھیں، کیونکہ علاقائی زبان کے غلبے کی وجہ سے اس پورے علاقے میں اردو صرف ایک بولی بنتی جا رہی تھی۔ لہٰذا سب سے پہلے اردو والوں کو اردو سکھانے کے لیے قومی کونسل کا مرکز شروع کیا گیا۔ ہمارا سینٹر سب سے پہلے ہم نے اردو کا سرٹیفکیٹ ڈپلوما کورس شروع کیا تھا۔ اب اس کی شروع کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے ضلع کے اندر خصوصاً ہمارے شہر میں اور اطراف میں اردو بولنے والے بہت سارے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اردو لکھنے والے بھی اور پڑھنے والے بھی بن جائیں، جس کی وجہ سے ہم نے بہت ہی اس کے لیے NCPOL کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری کالج کو سینٹر مقرر کیا۔ اردو کے بعد ڈپلوما ان عربک اور عربی میں سرٹیفکیٹ کورس کا یہاں آغاز ہوا۔ اس کے بعد قومی کونسل کا کمپیوٹر ڈپلوما کورس بھی شروع ہوا۔ اب کالج انتظامیہ نے قومی کونسل کا فارسی سرٹیفکیٹ کورس بھی یہاں متعارف کیا ہے۔ 2005 سے ہم نے ارادہ کیا کہ یہاں سے کورس شروع کرنا ہے قومی کونسل کا، تو اللہ کے فضل سے 2006 سے ہمارے پاس لگاتار ایک با ایک کورسز قومی کونسل کے برابر منظوری ملتی رہی۔ 2006 میں ڈپلوما اینڈ اردو شروع کیے اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ ان عربک اور اس کے بعد ڈپلوما اینڈ عربک شروع کیے، تو گزشتہ سال ہمیں ڈپلوما اینڈ کمپیوٹر اپلیکیشن اور ملٹی لنگول DTP کا کورس شروع کرنے کا بھی موقع ملا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سارے ہندوستان میں صرف 6 مرکز میں ایک مرکز ہے جو سرٹیفکیٹ ان پرشین کا کورس قومی کونسل کی جانب سے منظوری ملی ہے۔ سی عبدالحکیم کالج کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے ہر شعبے میں مسلم طلباء کے ساتھ ہندو طلباء کی بھی بڑی تعداد موجود ہے، لہٰذا قومی کونسل کے کورسوں میں بھی ہندو اور مسلم طلباء مل جل کر تعلیم حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ کوئی فلمی گیتوں کو سمجھنے کے لیے اردو سیکھ رہا ہے تو کوئی تمل اور اردو میں ترجمے کی غرض سے اردو زبان سیکھنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب قرآن مجید کو سمجھنے اور خلیجی ممالک میں روزگار پانے کے لیے چند طلباء عربی سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح قومی کونسل کا کمپیوٹر کورس بھی طلباء کو اپنی جانب راغب کر رہا ہے۔ NCPOL نے مجھے کافی پروتساہن دیا اور جس کی وجہ سے میں ڈپلوما ان اردو، ڈپلوما ان عربی اور ابھی NCPOL کا جو ملٹی لنگول کمپیوٹر ایبلٹی کا پروگرام ہے اس میں داخلہ لیا ہوں۔ اور اردو سیکھنے کا شروع سے لگا تھا، اچھے گانے، نغمے اور جو کہانیاں ہیں وہ سب پڑھنے کا شوق رکھتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد تلفظ میں کافی اچھا اظہار ہوا ہے۔ میں NCPOL کورس حکیم کالج میں اردو کورس جوائن کرتے ہیں۔ My name is S. Venkatesh. I am studying BSc Mathematics for this college, C. Abdul Hakim College. I am Urdu course, diploma course joining this course. Alif, Be, Pe, Te, Te, Se, Jim, Chim, Hai, Khai, Dal, Dal, Zal, Re, De, Ze, Ze. میں ڈگری کچھ نہیں کیا، ابھی ذرا کہ کمپیوٹر سیکھ رہا ہوں، الحمدللہ کمپیوٹر اور عربی سب سیکھ کے اگر میں باہر گیا تو مجھے جاب ملے گا، اس نیت سے میں سیکھ رہا ہوں۔ میں فرسٹ BSc میتھمیٹکس فرام حکیم کالج میں پڑھتا ہوں اور پڑھتے پڑھتے یوں بھی عربی کو سیکھ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ لیے سعودی عربیہ میں کام کے لیے اورینٹیڈ ایک ڈگری کے لیے زیادہ ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھا ہوں۔ سب چیز سیکھتے ہیں، 6 ماڈول ہے۔ فرسٹ ماڈول آپ کو MS آفس پیکیجز ہے اور IT ٹولس ہے فل۔ سیکنڈ ماڈول آپ کو بیسک انٹرنیٹ ویب ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، ویب ڈیزائنر بن سکتے ہیں۔ تھرڈ آپ کو ٹیلی سافٹ ویئر ہے، فل بیسکس اینڈ ایڈوانس ٹیلی ہے، جیسے کہ ویٹ ڈال سکتے ہیں، CST رپورٹنگ، سب اسٹیٹوری رپورٹنگ، ٹیکس کیسا ہے کیلکولیٹ کر سب چیز کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً ہر سال 80 بچے جو ہیں عربی سے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں۔ جو اس کے 2 کورسز ہیں، ایک سرٹیفکیٹ ان عربک ہے، ایک ڈپلوما ان عربک ہے، فنکشنل عربک ہے، تو اس میں شروع ہی سے یہاں پڑھا رہا ہوں۔
सी अब्दुल हकीम कॉलेज में NCPUL के मुख्तलिफ कोर्सों से अब तक तकरीबन 4,500 तलबा ने इस्तेफादा किया है। कौमी कौंसिल की कोशिशों से तमिलनाडु के इस दूर दराज इलाके में उर्दू की शमा रोशन है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। नाजरीन, इस नगमे में कश्मकश और दिल नवाजी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कश्मकश के माने उलझन, पसोपेश, और दिल नवाजी के माने दिलजोई के हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।